بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حسین مرزا یوٹیوب چینل کے ساتھ سے اپنے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 عدد 3 عدد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں ملک کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے وہ چیزیں ان کا احاطہ کیا جو کہ ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ آج ہم بالکل ایک نئے مگر بہت ہی اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں اور یہ معاشرتی پہلو پہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ میرے دوستوں کا خیال تھا کہ ہم ان مسائل کے تدارک کی طرف جائیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم تمام ان مین چیزوں کا احاطہ نہ کر لیں، ہمیں تدارک کی طرف فوری طور پر جانے سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ ہم سب چیزیں تشخیص مکمل طور پر کر لیں تو اس کے بعد پھر اس کا علاج شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے احساس ہے دوستوں کی اس بات کی اہمیت کا کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے، وہ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے معاملات کو سیدھا کرنے میں جو اپنا حق ہے، جو اپنا حصہ ہے، وہ ڈالیں۔ مگر میرے دوستو، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے، مگر ہم 1-2 چیزیں اور ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی طرف جائیں گے۔ آج جو موضوع ہے یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، میرے گھر کی، آپ کے گھر کی، دوستوں کے گھر کی، سب گھر کی کہانی ہے۔ اور یہ بات ڈسکس کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے اوپر یہ بات صادر آئے اور کوئی سمجھے کہ یہ بالکل ہو بہو وہی چیز ہے جو میرے ساتھ پیش آ رہی ہے، تو اس کو قطعاً ایسا نہ سمجھے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا کسی خاص مقصد کو، کسی خاص آدمی کو سامنے رکھ کر یہ بات کی جا رہی ہے، نہیں۔ اور یقیناً اگر ہم سب مل کر اس برائی پر قابو پا لیں تو ہم اپنے 70% مسائل جو ہیں ان کو حل کر لیں گے۔ میرے دوستو، آج نفس نفسی کے دور میں ہم اپنا ایک سٹیٹس طے کر چکے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ایک سٹیٹس طے کر چکے ہیں، اور اسی کے ضمن میں ہماری خواہشات لامحدود حد تک بڑھ رہی ہیں۔ ان کی لمبی فہرست ہے جن کو حل کرنے کے لیے، جن کو پورا کرنے کے لیے میں رات دن ایک کر رہا ہوں، اور میں سرپٹ دوڑ رہا ہوں۔ مجھے نہ کسی چیز کا اپنی آسانی کا احساس، نہ اپنی ٹائم کا احساس، نہ اس کے علاوہ مجھے اپنی دوسری ذمہ داریوں کا احساس۔ میں صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور دولت میرے آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ اسی انداز میں میں اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہا ہوں، اور میں بچوں کو بھی وہ تمام سہولیات میسر کر رہا ہوں جس سے وہ بعد ایک اچھے ماحول میں اپنے سے بڑے لوگوں میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ ایک بڑے گھر کے بچے ہیں، اور ان کو وہ تمام سہولتیں میسر ہیں جو کہ ایک بڑے گھر کے بچے کو ہوتی ہیں۔ یہ تکلف کی زندگی ہے، میں اسے سمجھتا ہوں یہ تکلف کی زندگی ہے، اس میں ہم بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا نہیں کر رہے۔ میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کا بالکل پرواہ کیے بغیر ان کے لیے اپنے دروازے بند کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب میں اوپر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے اوپر کے لوگ جو ہیں، وہ طبقہ، وہ بھی اپنے اوپر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ ساری کہانی صحرا کے پانی کی مانند ہے، اور کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم صرف ایک دوڑ میں لگے ہیں، سٹیٹس کی دوڑ میں اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی دوڑ میں۔ ہمارے اسی ماحول میں ہمارے بچے پل رہے ہیں، اور وہ بچے ہم سے یہی کچھ سیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ضرورت مندوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں۔ ہم میں وہ جو بھائی چارہ تھا، بھائیوں کی الفت تھی، وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب اسی ماحول میں بچے پرورش پائیں گے تو ہم سے یہی کچھ سیکھیں گے۔ آج ہم ایک بہت بڑی مشکل اپنے لیے کھڑی کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مائیں موبائل دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہیں،
उन्होंने खाना खिलाना है या बच्चों को कहीं मसरूफ़ करना है, अपना काम करना है, तो उनको गेम या कार्टून लगा के मोबाइल पकड़ा। हालांकि मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसका मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो इससे तरक्की की राहें खुलती हैं और इसमें बेशुमार आपको दुनिया का इल्म हासिल होता है और आप दुनिया को अपने हाथ में लेकर चल रहे होते हैं। मगर इसका जब इस्तेमाल ही आप कार्टून और गेम की हद तक करेंगे तो आप बच्चों को कुएं का मेंढक बना रहे हैं, बच्चे के जहन उसी हद तक महदूद हो रहे हैं। हम इससे तरक्की नहीं कर रहे, हम बच्चों की वो तरबियत नहीं कर रहे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमने जो बच्चों को माहौल दिया है, जिस माहौल में हम बच्चों को पाल रहे हैं, वो माहौल इतना घिनौना है कि उसमें नफ्सा नफसी अफरा तफरी और तन्हाई का शिकार बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जब हमारी माएँ हमें सुबह स्कूल के लिए तैयार करती थीं तो हम बावर्ची खाने में अपनी वालदा के इर्द गिर्द बैठ जाते थे। शाम को हम डाइनिंग टेबल पर या एक चटाई पर इकट्ठे पूरे फैमिली, घर के सारे अफराद बैठकर हम खाना खाते थे। हमें वालद वालदा एक कहानी सुनाते थे जिसमें हमारी तारीख़ होती थी, जिसमें बुज़ुर्गों की नसीहतें होती थीं और वो हमें इनहेरिट करते थे, ये सारी चीज़ विरसे में देते थे और हम उसी को लेके आगे चलते थे, वही सीखते थे। वो हमारी खाली स्लेट पे लिखने वाली बात होती थी और पक्का लिखा जाता था। आज तक बचपन की बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं। आज हम जो बच्चों को उनकी इस उम्र में सिखाएंगे, जो इस उम्र में उनके सामने करेंगे, वो बच्चों के लिए एक पक्की लिखी हुई चीज़ होगी जो अनमिट होगी और उनके दिमाग पे छा जाएगी। इसी तरह बच्चियाँ मुआशरा बनाती हैं। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो, मैं आपको बेहतरीन कौम देता हूँ। आज हम बच्चियों को भी वही माहौल दे रहे हैं जिसमें वो ये देख रही हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे अजीज़ों ने बुज़ुर्गों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए घर के दरवाज़े दौलत की दीवारों से बंद कर दिए हैं। उनके हाँ मेहमान नवाजी का सिलसिला ख़त्म हो गया है। और जब आपके घर इस तरह की बहू आ जाए, इस तरह की बेटी आ जाए, इस तरह की बहन आ जाए, इस तरह की बीवी आ जाए कि आप जब मेहमान का नाम लें तो उसे कोफ्त हो, वो बेजारी का इजहार करे, आप समझें आपकी तनज़्ज़ुली शुरू हो गई और आप खुशकिस्मत हैं कि यार आपको ऐसी बहू मिल जाए जो दस्तरखान को वसी करने में अपनी खुशी और फ़ख्र महसूस करे। उससे इंशाअल्लाह, उससे अल्लाह के फ़ज़ल से आपके घर में बरकतें आ जाती हैं और आपका घर एक खुशगवार घर बन जाता है। खुदा के लिए हमें इन सब चीज़ों को बच्चों के सामने इस तरह पेश करना चाहिए कि हम एक वो माहौल पैदा कर सकें जिसमें हमारा बेहतरीन मुआशरा और बेहतरीन कल्चर जो हम अपनी विरासत से, अपने असलाफ से लेके हैं, वो ज़ाहिर। आज हम अपने घर में अगर 2 भाई रहते हैं तो एक भाई के बच्चे जो चीज़ खाते हैं वो दूसरे भाई के बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनसे बचा ली जाए। जबकि हमें याद है हमारे बुज़ुर्ग जब बाहर से तशरीफ़ लाते थे तो वो कुछ फल लेकर आते थे। हमारी माएँ वो फल 2-3 घरों में कम से कम बांटती थीं और हम इस तरह वो फल मिलकर खाते थे। हमारे बुज़ुर्ग जाते हुए जब बच्चों को किसी को देखते कि ये बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसकी तरबियत करते थे, उसको समझाते थे, सख्ती से भी उसको मना करते थे। वो क्यों करते थे? इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा था कि उनके इस तरह मना करने से उन बच्चों के वालिदैन उनसे आके बाज़-पूछ नहीं करेंगे कि आपने मेरे बच्चे को ये बात क्यों की। बच्चे सबके साझे होते थे और उनको समझा जाता था कि सबके बच्चे साझे हैं। मोहल्ले के बच्चे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं और हम मिलकर इनकी तरबियत करेंगे और एक अच्छा माशरा बनाएंगे। जबकि आज ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बच्चे की गलती को नहीं देखूंगा, मैं उस पर डट जाऊँगा। मेरे दोस्तों, आज हम जिस तरक्की की बात कर रहे हैं वो तरक्की नहीं है। भाई भाई का हक खा रहा है और उसे हक समझता है। हम किसी दूसरे को कुछ चीज़ देने के लिए तैयार नहीं। हम समझते हैं कि जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ है वो मुझे मिल जाए।
दूसरा अगर भूखा सोता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे बुज़ुर्ग दस्तरखान को खूबसूरत बनाने के लिए मेहमानों को बुलाया करते थे। जो मुयस्सर वसाइल थे उन्हीं में सब मिल बैठकर खुशी से खाते थे। और अगर कहीं मेहमान ज़्यादा हो जाएं, आपके पास खाना कम हो, तो वो दस्तरखान पर बैठे उम्दगी से अपना हाथ खींच लेते थे ताकि मेहमान पेट भर कर खा लें। आज क्या है, आज मैं शादी में हूँ, घर में हूँ, मेहमान हूँ, बाहर हूँ, जहाँ भी हूँ, जब मैं डाइनिंग टेबल पे बैठता हूँ, मेरे सामने गोश्त आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले अच्छी बोटी में निकाल के अपनी प्लेट में डालूं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले कोशिश होती थी कि साथ वाले की प्लेट में अच्छी बोटी डाली जाए। ये भाईचारे की फ़िज़ा हम गुम कर बैठे। ये मोहब्बत जो हमारे बुज़ुर्गों में हमने अपनी आंखों से देखी है, वो हम गुम कर बैठे। हम दौलत की दौड़ में, बड़ा बनने की दौड़ में अपने वो रवायात ख़त्म कर बैठे और भूल बैठे हैं। खुदारा आएँ हम अपने अंदर भाईचारे की फ़िज़ा को पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करके, एक दूसरे के दर्द को महसूस करके बाहम चलें, ताकि हमें ये आदत पड़े कि हम अपनी कुर्बानी दूसरे के लिए दे सकते हैं, हम मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, हम भाई के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब तक ये जज्बा आप अपने अंदर पैदा नहीं करते, उस वक्त तक आप इसी तरह दौड़ते रहेंगे सुकून की तलाश में। आप 1,00,000 रुपए के बेड का मुआवजा उस चारपाई से करें कि जब आप 1,00,000 रुपए के बेड पर गोलियां खाकर लेटें, तड़पते रहें, आपको नींद ना आए। और एक वो चारपाई जिस पर आप बाजू सर के नीचे रखें और लेटें और आपको सुकून की नींद आ जाए और सुबह आप फ्रेश होकर उठें। क्या मुआवजा है, क्या खूबसूरती है। दौलत से नींद नहीं ली जा सकती, बेड तो ख़रीदा जा सकता है। इसलिए आएँ, दौलत को छोड़ें, सुकून की तलाश में, मोहब्बत की तलाश में, तस्कीन के लिए भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करें। आपस में मिलकर बैठें, इस मुल्क के लिए सोचें जिसने हमें इज़्ज़त दी, सुकून दिया और अमन दिया। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी इसी तरह की गुफ्तगू आपके साथ शेयर करेंगे और आपके आरा, आपके कमेंट्स हमारे लिए इस्लाह का पहलू निकालते हैं और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस माशरे को दुरुस्त करने में अपना हिस्सा डालेंगे। हम नाउम्मीद नहीं हैं, ना हो नाउम्मीद। ऐ इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हम इंशाअल्लाह ताला इसी डगर पे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने भाइयों की इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी गुफ्तगू शनीद करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी आरा से हमें नवाजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।